study tense in a different way. So first of all, let me tell you what is the tense. Tense is a part of sentence that describe time. What is happening, what happened, and what will happen. So in this way, the tense can be divided into three types: simple present, simple past, and simple future. Today we will learn tense in this way. Simple present, we will study all the rules and verbs of simple present, then simple past, and then simple future. I have taken the same example for past tense also and future also. We will learn tense comparatively. It means which verb we will use in simple present and which verb we will use in simple past and which verb we will helping verb and verb we will use in future. So let's start the verb and the rules of simple present tense. When we will study, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, so what is happening, what is right now at the present moment, at the name suggests simple present tense. It means the present moment, the incident and action, what is happening at the present moment, the simple present tense will describe. The verb, which verb we will use? This example I have taken the assertive, means this is the affirmative sentence example I have taken. So in this way, which verb we will use? First form of verb plus s or es we will use. The verb, either first form of verb we will use or first form of verb plus s or es we will use. Let me tell you where you will use the first form of the verb and where you will use s or es. Singular and plural. The subject can be singular, subject can be plural. So according to the singular and plural, you must know the singular and plural verb. So all the subject, the plural. If your subject is plural, then you will use first form of verb, like we go to school daily. हम रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं. तो यहाँ पे क्या है, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है. तो ये क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स एंड कॉम्प्लीमेंट. आई होप दिस एग्जांपल वुड बी क्लियर. With the plural subject we will use first form of the verb. With the singular subject we will use s or es. We plus s or es. I hope it would be clear. Like the second example I have taken the singular. She is only one. Plural means if the so many person for the so many person we will do the plural subject, and for the one person we will consider it the. So she plays football every Saturday. Okay, so she plays. As you can see here, यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा रहे हैं, एस और es लगा रहे हैं. फुटबॉल एवरी सैटरडे मीन्स एवरी सैटरडे वह फुटबॉल खेलती है. मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में वो खेलती है. केवल दो रूल आपको फॉलो करना है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है. जो भी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस और es उसमें लगाना है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. यू राइट अ लेटर टू योर अंकल. यू राइट, अब यू भी आपका किस में आता है, ये भी आता है प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट हम क्या लगाए हैं, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया है. प्लूरल में क्या लग रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर्स। ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे इसको बनाने में, ठीक है। अब फिर हमारा एक सिंगुलर, एक प्लूरल, एक सिंगुलर, फिर एक प्लूरल, फिर एक सिंगुलर मैंने लिया है और एक आई लिया है। तो इसमें he sings a song, यहाँ पे क्या है, he है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, he sings a song. Now the next example, I study English. I study English. ये भी I को हम प्लूरल सब्जेक्ट में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगाया. So as present, simple present tense I had explained. I hope it would be clear. Simple present tense, the verb which we will use. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. सिर्फ आपको 2 रूल लर्न करने हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एस और एस सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना, एस और एस वाले, और प्लूरल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने. केवल 2 रूल ही आपको याद करने हैं. अभी आप पास्ट की बात करेंगे. What had happened, what happened, जो हो चुका होगा, जो बीत चुका होगा, उसके लिए हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस. जो हमने कल किया होगा, जो हमने परसों किया होगा, जो हम लास्ट ईयर किए होंगे, जो हम पिछले साल किए होंगे, तो वो हमें क्या हो गया, वो हमारा आ जाता है पास्ट में. या हम वो पिछले सुबह ही किया होगा, पिछले घंटे ही किया होगा, तो वो हमारा जो समय बीत चुका होगा उसकी बात हम करेंगे, तो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस. तो अभी हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा. अब इसी वर्ब को, इसी सेंटेंस को मैं आपको यहाँ पे पास्ट में करके बताऊंगी, फिर आपको यहाँ मैं फ्यूचर में बताऊंगी. चलिए, अब यहाँ पे ये क्या है, वी गो टू. अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल पास्ट में हम लगाते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें वर्ब ही हमारा हो जाता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हम करते हैं. तो जो भी वर्ब हमारा सिंपल प्रेजेंट में है उसका वर्ब हम पास्ट में लाएंगे. वी गो टू स्कूल डेली को हम क्या बना देंगे, वी वेंट टू स्कूल डेली. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज कर दिया, ये हमारा बन गया पास्ट. इसमें क्या करना है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सेकेंड पास्ट में क्या हो जाता है, उसी वर्ब को हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं. तो पास्ट में भी जो बीत गया होगा, जिस बात उस शो करने के लिए, बीते हुए समय के लिए, टाइम के लिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. फिर सेकेंड प्लेस का क्या हो जाएगा, प्लेड. सी प्लेड फुटबॉल एवरी सैटरडे. क्या क्या हमने पास्ट बनाने के लिए क्या हो गया, हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाना है केवल. नेक्स्ट, अब यहाँ क्या हो जाएगा, राइट. सेकेंड फॉर्म ऑफ द राइट का क्या होता है, रोट. यू रोट अ लेटर to your uncle. Okay. Now next one. नेक्स्ट क्या है, he sings a song. he sings a song क्या आ जाएगा आपका, he sang. सेकेंड फॉर्म हम सबका क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाएंगे. he sang a song. अभी हम इसकी बात करेंगे. नेक्स्ट की, I studied English. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में इस तरह. अभी हम सीखेंगे कि फ्यूचर में, अब जो हम कल करने वाले होते हैं, व्हाट विल हैपन, कल क्या होगा,
उसकी जब फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो अब ये जो है सिंपल प्रेजेंट है, उसी में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हम लगाएंगे। तो वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं जनरली, ये इसके रूल अलग होते हैं, हम आपको बताएंगे। वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे डेली की बात नहीं आएगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टुमारो। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, टाइम के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, वी शी प्लेड, यहाँ पास्ट है, या शी प्लेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी विल प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी विल प्ले फुटबॉल व्हेन एवरी सैटरडे, तो यहाँ पे एवरी सैटरडे नहीं हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे प्लेड फुटबॉल लास्ट सैटरडे, सॉरी यहाँ पे आएगा लास्ट सैटरडे, यहाँ पे एवरी सैटरडे नहीं आएगा, लास्ट सैटरडे। ठीक है, प्लेड आ गया मालूम, यहाँ पे लास्ट सैटरडे आ जाएगा। So she will play football next Saturday। ठीक है, she will play football next Saturday। तो हम टाइम के सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या किया, she played football last Saturday, क्योंकि ये पास्ट में लास्ट सैटरडे खेला था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, she will play football next Saturday, अब वो अपकमिंग जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें वो खेलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, you will write a letter to your uncle। Okay, next, he will sing a song। Now the last one, not least, as will or shall study English। Sometime for the necessity and surety, we will use will also with I। So I hope it would be clear. Now you know what is the simple present tense and simple past, which verb you will use in simple present tense and which verb simple past and future. I hope it would be clear. Now I am moving aside. You can take a screenshot or note it down. Now we will learn how to change an assertive sentence into negative in simple present tense, simple past tense and simple future tense. So as you can see here, already I have changed simple present tense into negative. How will you? An assertive sentence and affirmative sentence will change into negative. Why changing the negative? Two things will.
according to the singular and plural subject. With the plural subject, do not, we will. Do not plus first form of the verb. We need to change. And while changing the singular, does not. Two rule you need to learn. दो बातें आपको ध्यान रखनी है क्या? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे. जैसे शी डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे. सेम एग्जांपल आई हैव टेकन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड clearly how to change negative sentence. How will you make the negative sentence? You do not write a letter to your uncle. Do not write. What is the main keyword? Do not write and does not write. Do not write with the plural subject, with the singular subject, does not write. Just keep it in mind. Learn. 4 बार 5 बार इसको learn कर लीजिए. Singular subject, does not. Does not plus first form of the verb. Plural subject, do not plus first form of the verb. अभी दूसरे नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ वन. He does not sing a song. एक बात और ध्यान देंगे, छोटी सी मिस्टेक हम कर देते हैं. does not के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है. जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम वर्ब में एस आई एस लगाते हैं. जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो यहाँ से एस आई एस आप देख सकते हैं सभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से एस और एस नहीं लगाते हैं, बल्कि उसकी जगह हम डज नॉट लगाते हैं, यहीं पे एस लगा देते हैं. अब लास्ट नॉट लीस्ट, आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ we will learn how to change this into past of negative sentence. past का हम क्या सीखेंगे? negative sentence of simple past tense. जैसा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाते हैं, तो यहाँ पे डू नॉट का हम क्या कर देंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड नॉट लगा देंगे. पहले है क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट go to school yesterday. We did not go to school yesterday. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें कल की बात, बीते हुए कल की बात करनी पड़ेगी, पास्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें पास्ट वर्ब शो करना है. हम कल स्कूल नहीं गए थे. ठीक है, अभी हम आगे नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमारा क्या सेंटेंस है? वी डज नॉट प्ले फुटबॉल. शी डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे. अभी हमारा एवरी सैटरडे जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट में, लास्ट सैटरडे में चेंज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट. यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल किसी को कुछ नहीं करना है. डिड नॉट, कभी हम डिड नॉट के साथ वेंट नहीं लगाएंगे. जैसे आपने याद किया कि असर्टिव सेंटेंस में क्या था कि जब हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया तो यहाँ पे हमने क्या किया? डू नॉट डज नॉट को ही डिड नॉट कर दिया, एक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया है. तो ये वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा. ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वेंट ना हो जाए. यहाँ पे नेगेटिव में आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे विद डिड नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे शी डिड नॉट प्ले football last Saturday. ठीक है. नेक्स्ट वन, you do not write. You did not. Did not write letter to your uncle. Next one, he did not
Sing a song. Now the last one, not least, I did not study English. I hope it would be clear. Now, future tense. Negative sentence of simple future tense. Okay. Now this will be changed into will not or shall not. So, we shall not go to school tomorrow. Next, she will not play football next Saturday. Next, you will not write a letter to your uncle. Okay. Next, he will not sing a song. Will not plus first form of the verb. Will not, while changing the future tense into negative, जब हम future tense का negative बनाएंगे तो क्या करेंगे? Will not plus first form of the verb. Very easy. I will not study English. I hope it would be clear how to change negative sentence of simple present, simple past and simple future. Now you can take screenshot or note it down. Now we will learn how to change interrogative sentence. How to change the interrogative sentence of simple present tense, simple past tense and simple future tense. And which verb and which helping verb we will use in simple present tense, past tense and simple future tense. Okay. So now interrogative sentence. We are going to learn how we will change the interrogative sentence. So while changing the interrogative sentence, helping verb plus subject plus first form of the verb. कीप इन माइंड हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना. जैसे हमने नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो भी लगाया था अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में हम क्या लगाए थे, डज नॉट, एंड प्लूरल में क्या लगाए थे, डू नॉट. द सेम वी विल यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो. सेम हेल्पिंग वर्ब विद सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हमने क्या किया, पहले डू लगाया, डू वी गो टू स्कूल डेली, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड विद द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यू शुड पुट हियर द क्वेश्चन मार्क. सो वी डू वी गो टू स्कूल, क्या हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट ऑफ द वर्ब. डू वी गो, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब. यहाँ पे भी क्या किया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे शी है, तो हमने क्या किया है, डज शी प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे. यहाँ पे फिर वही डू, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डू यू राइट अ लेटर टू योर अंकल एंड द क्वेश्चन वर्ब. ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है
एट द एंड ऑफ एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये छोटी मिस्टेक हम करते हैं और हमारे मार्क्स चले जाते हैं, हमारे सेंटेंस ग्रामर के गलत हो जाते हैं। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन अगर आप दूर कर लिए ना तो आप मास्टर हो जाएंगे आप सेंटेंस को। फन विद सेंटेंस, फन विद टेंस। अगर आप फन करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सेंटेंस बनाते जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो डज ही सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या किया कि डज वही है, वर्ब वही है जो हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हम वही लगाएंगे जो हमने नेगेटिव में लगाया था। प्लस इसमें क्या है, पहले हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव, पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है। तो फिर वहां पे भी है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हम यहाँ पे नेगेटिव की बात आएंगे, सेम वही चीज करेंगे हम। नेगेटिव पास्ट में भी वही करेंगे। अब हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में भी हम वही करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, डू वी गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, डिड। डिड वी गो टू स्कूल डेली। देन क्वेश्चन मार्क। सो डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेम तरीका यहाँ पे मेरे, बस हेल्पिंग वर्ब क्या बदल रहा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब हमारा चेंज होता है सेंटेंस को बदलने के लिए। हमें क्या याद करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही याद रखना है कोई भी टेंस पढ़ने के लिए। जब हम कोई भी टेंस पढ़ेंगे उसमें हमें वर्ब और हेल्पिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर वही डिड सी प्ले, फुटबॉल लास्ट सैटरडे। देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू राइट अ लेटर टू योर अंकल। क्वेश्चन मार्क। डिड ही sing a song did I study English? Question mark. The same now we will learn the future, simple future. The same we will learn helping of subject plus verb. Again shall helping verb, shall we go to school tomorrow? Question mark. Next one, will she play football next Saturday? Question mark. Next one, will you write a letter to your uncle? Question mark. Will he sing a song? Question mark.
will and shall both become shall. I study English question mark. So in this way you can change the sentence into assertive, negative and interrogative. I hope it would be clear. Now you can take a screenshot or note it down. So student, it was the explanation of tense, simple present tense, past and future. I hope it would be very useful to you all. If you like my video, hit the like button. For more videos like this, please subscribe my channel. But don't forget to press the bell icon so that you can get the notification if I upload any new video. Thanks for watching.